Hello students, after studying so many different types of characteristics features of metals and non-metals and so many different types of chemicals properties of metals and also chemical properties of non-metals. In this time we are going to study about usage of metals and non-metals in details. Usage. After studying all such types of properties, we are going to study about so many different types of properties and properties of usage of metals and non-metals as per your book. Usage of metals. A lot of information is listed in your book, like to be 14 related to metals and 15 related to your non-metals. And it is far better to understand to each other, read more and more again and again. Okay, तो पहला है copper and aluminum due to their electrical and thermal conductivity are used to make utensils, cooking vessels, electrical wires and appliances. ये इसकी प्रॉपर्टी है, कॉपर एल्युमिनियम का बड़े पैमाने पर होता है इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी के चलते. तो these are the usage. Zinc is used to make dry cells. जिंक का प्रयोग ड्राई सेल्स के रूप में होता है. Mercury is used in instrument called sphygmomanometer or also thermometer and also barometer to measure the temperature of human body and also the environmental pressure. तो स्फाइग्नोमैनोमीटर में और बैरोमीटर में और थर्मोमीटर में मरकरी का प्रयोग होता है. आयरन इज यूज इन मेकिंग ब्रिज. और आयरन का प्रयोग तो कितना हो रहा है आजकल, तो आपको पता ही है. ब्रिज बनाने में, पाइप्स, रोड एंड सीट्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क, गेट्स, रेलिंग ईटीसी. बड़े पैमाने पर लोहा का प्रयोग होता है. Various tools, machines and machine parts like screw, nails, bolts, chains are also made up of iron. सारे आयरन के बनते हैं. Zinc is used in the process of galvanization. जैसे हम लोग देख रहे थे galvanization process, जो रस्ट को रोकने के लिए हम लोग करते थे, क्रोजन को रोकने के लिए गैल्वेनाइजेशन किया जाता था, उसमें जिंक का प्रयोग ज्यादा होता है. तो इस तरह से गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के द्वारा जिंक का प्रयोग on the large scale होता है. Copper and zinc are important constituents of alloys such as brass, bronze and German silver. में कॉपर और जिंक का प्रयोग होता है. ये मेटालॉइड्स हैं, ब्रॉन्ज एलॉयज हैं, सॉरी. तो इसमें कॉपर और जिंक का प्रयोग ज्यादा होता है ब्रास, ब्रॉन्ज एंड सिल्वर, जर्मन सिल्वर बनाने में. क्रोमियम इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी हम देख रहे थे कि रस्ट को कैसे, क्रोजन को रोका जाए, मेटल्स क्रोजन को. तो हम लोग गैल्वेनाइजेशन भी करते थे और इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी करते हैं उसमें क्रोमियम का. तो गैल्वेनाइजेशन में जिंक का प्रयोग होता है और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्रोमियम का प्रयोग होता है. एल्युमिनियम फॉयल हैज एक्सटेंसिव यूज इन पैकेजिंग. इसका प्रयोग ज्यादा पैमाने पर होता है एल्युमिनियम फॉयल का. Aluminium is also used to make parts and bodies of aircrafts and automobiles. Aluminium का प्रयोग, ये पढ़ने वाली चीज है, इसमें ज्यादा कुछ बताने वाली नहीं है. PB, lead is used for making batteries and electrodes. Magnesium, due to its burning with white dazzling light, is used to make fireworks. Gold, silver and platinum are called noble metals as they do not react easily with anything and are used to make jewelry and other articles. बहुत नॉन रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे होते हैं. Alloys of various metals are used to make articles of daily use. For example, steel, an alloy of iron, carbon, nickel and chromium is used to make utensils. Brass is an alloy of copper and zinc and bronze of copper and tin. तो याद रखिएगा, ये जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्रास की जो बात आती है, इस चीज का बना होता है. an alloy of carbon
nickel and chromium is used to make utensils. Brass is an alloy of copper and zinc. Copper plus zinc. And bronze, ये है कॉपर और टीन SN, और ये जो an alloy of iron. Alloy of various metals are used to make articles of daily use. For example, steel. क्या है? Fe है, प्लस कार्बन है, प्लस निकेल है, और सी है। तो इस सब का याद रखना चाहिए कि ब्रास बनाने में कॉपर, जिंक, ब्रॉन्ज, कॉपर, SN। तो दीज आर दी फिगर्स। तो ये सब होता है। नाउ ये एलॉय जो है मेड बाय मिक्सिंग आइदर मेटल्स with other metals or metals with non-metals to enhance their properties। इस तरह का ये मिश्रण होता है। यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स का क्या उपयोग है? हाइड्रोजन एंड हीलियम आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर ऑफ प्लेनेटरी बॉडीज। प्लेनेटरी बॉडीज उसमें ज्यादा ये गैसें होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट्स में महत्वपूर्ण है हीलियम और हाइड्रोजन। जैसे सन की भी बात करते हैं तो वहां भी हीलियम गैसेज की बात होती है। हाइड्रोजन इज ए नॉन पॉल्यूटिंग इफिशिएंट फ्यूल। इससे कम मात्रा में पॉल्यूशन होता है। ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर द लिविंग बीइंग्स टू ब्रीथ इन। ये तो सभी लोग जानते हैं कि विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट सर्वाइव। ऑक्सीजन इज ए मस्ट फॉर ऑल द बर्निंग प्रोसेस। और ये भी बात है कि ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी है जलना और जलाना। पूरी दुनिया को जलाता है और हमारे अंदर ड्यू टू रेस्पिरेशन जल जाता है। तो ऑक्सीजन इज ए मस्ट फॉर ऑल द बर्निंग प्रोसेसेस इवन इनसाइड आवर बॉडी फॉर प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन। कार्बन इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द लिविंग मैटर। जितने लिविंग मैटर है उसमें कार्बन रहता है, चाहे वो प्रोटीन्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो, एनीथिंग्स। पेट्रोल हो, डीजल हो, पेट्रोकेमिकल्स हो, न जाने जितने भी हो, अधिकांश चीजों में मस्ट एबंडेंट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स कंटेन कार्बन। जैसे कि कहा, सल्फर इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सल्फ्यूरिक एसिड व्हिच इज ए वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल। बहुत अच्छा सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में सल्फर का प्रयोग होता है। सल्फर is also used in manufacture of skin medicines and ointment due to its fungicidal properties। फंगस को ये मारता है, इसके चलते इसका प्रयोग ऐसे होता है। Phosphorus is used in manufacturing matchsticks, fireworks and fertilizers। Chlorine is used as disinfectant of water। जैसे देखा था COH twice Cl2 के रिएक्शन कराते थे तो बनता था CaOCl2 that is called bleaching powder and is used to make bleaching powder। Iodine is imported to prevent a disease called goiter, so it is consumed as iodized salt। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए आजकल हम लोग नित्य प्रतिदिन आयोडाइज्ड साल्ट के रूप में आयोडाइज्ड साल्ट युक्त नमक का सेवन करते हैं। नाइट्रोजन इज द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स ऑल्सो। ये तो छिपा हुआ बात नहीं है। नाइट्रोजन इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व ब्लड को प्रिजर्व करने में नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। हीलियम इज यूज बाय डीप डाइवर्स टू रेस्पायर अंडर वाटर अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन। तो these are the properties of metals and non, these are the usage of metals and non-metals in our daily life। तो आज इतना ही बनाने दिया जाता है। नेक्स्ट डे वी विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ओके, थैंक्स।